Good morning, student. My name is Nirisha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of our object-oriented programming using C++. Now in our previous lecture, we started our unit 4, that is pointer and polymorphism in C++. Okay. So in our previous lecture, what we learn? We learn about how to overloading binary operators, and then how to overload or arithmetic operator and assignment operator. Okay. Now first tell me what is binary operator. Now here the binary operators are the operator, they have a two operand. मतलब जो ऑपरेटर टू ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं फॉर डूइंग देयर ऑपरेशन दे आर कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल प्लस, then minus, division, multiplication, these are the few example of our binary operator. Now to overload our binary operator you can overload by two ways, with the help of member function, okay, or you can do the overloading with the help of friend function. Okay, then we learn this some rules that we have to follow for overloading operators. Okay, so these topics we covered in our last lecture. Now our today's topic, that is what is runtime polymorphism, what is virtual function and pure virtual function. Okay, so first we'll start with runtime polymorphism. So here, tell me what is runtime polymorphism. Now in C++, it supports runtime polymorphism with the help of virtual function. C++ में runtime polymorphism कैसे अचीव होता है? With the help of this virtual function. Okay, so it is called late and dynamic binding because the appropriate function is selected dynamically at a run time. नाउ रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं उसको? कि जो कौन सा फंक्शन हम लोग को इन्वॉक करना है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइंड होती है एट अ टाइम ऑफ रन टाइम. ओके, डायनेमिकली एट अ रन टाइम. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेट बाइंडिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायनेमिक बाइंडिंग. ओके, सो रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट फंक्शन कब सिलेक्ट होता है? डायनेमिकली एट अ runtime. Okay, that's why it is called as a runtime polymorphism. Okay, now here this runtime polymorphism can be achieved with the help of this virtual function. So now what is virtual function? Here you can see when we use the same function name in the both base and derived class, the function in a base class declared as a virtual using the keyword virtual presenting its normal declaration. देखो फॉर एग्जांपल आपके पास टू क्लास है, वन इज़ बेस क्लास एंड वन इज अनदर इज डिराइव क्लास. तो ये दोनों क्लास में आपके पास कोई सेम फंक्शन नेम है. ओके, तो ये जो सेम फंक्शन नेम है तब आप लोग को क्या करना है कि जो भी आपका बेस क्लास का फंक्शन रहेगा उसको आपको कैसे डिक्लेयर करना है? वर्चुअल डिक्लेयर करना है. क्या डिक्लेयर करना है? वर्चुअल डिक्लेयर करना है. और वो कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं? फॉर दैट यू हैव टू यूज़ वर्चुअल कीवर्ड. कोई भी फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर करने के लिए आप लोग को वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा. और वो आप लोग को क्या लिखना है? जो भी आप लोग का फंक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके आगे आप लोग को वर्चुअल लिखना है. ओके, सो तो ये वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर विद इन द बेस एंड रीडिफाइंड बाय द डिराइव क्लास. मतलब वर्चुअल फंक्शन क्या रहता है कि क्लास रहता है जो हम लोग ने किस में डिक्लेयर किया है? अवर बेस क्लास में. और उसको फिर से कौन रीडिफाइन करता है? अवर डिराइव क्लास. तो सेम मीनिंग है उसका कि जो हमारे एक फंक्शन है उसका नेम सेम रहेगा बट वो बेस क्लास एंड डिराइव क्लास दोनों में एग्जिस्ट करता है. ओके, सो व्हेन द फंक्शन इज मेड वर्चुअल द C++ determine which functions to be used at a runtime based on the type of object pointed to the by the base pointer rather than the type of pointer. देखो यहाँ पे देखो कि हम लोग ने बेस क्लास एंड डिराइव क्लास दोनों में सेम फंक्शन है. ओके, सेम फंक्शन नेम है. तो कौन सा फंक्शन आप लोग को यूज़ करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो आप लोग रन टाइम पे आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर रहेगा वो किसको पॉइंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो द हियर द विच फंक्शन यू हैव टू यूज दैट इज
identify with the help of the pointer of our base class. Okay, so here you can see, thus by making the base pointer to point a different object, we can execute a different version of the virtual function. देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है वो कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हमारा जो भी बेस क्लास का पॉइंटर है उससे. ओके, तो वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट वर्जन, मतलब अलग अलग जो भी हमारे वर्चुअल फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट वी मस्ट एक्सेस वर्चुअल फंक्शन थ्रू द यूज ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर एज द पॉइंटर टू द बेस क्लास. देखो ये वर्चुअल फंक्शन हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं. आप लोग को कोई भी वर्चुअल फंक्शन एक्सेस करना है तो आप लोग बेस क्लास के जो पॉइंटर है उसको यूज़ कर सकते हो. सो वी कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट नेम द सेम वे एज मैनी अदर ऑब्जेक्ट फंक्शन मेंबर फंक्शन टू कॉल द वर्चुअल फंक्शन. But remember, the runtime polymorphism is achieved only when the virtual function is accessed through the pointer to the base class. देखो ये जो हमारा बेस क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके भी आप लोग वो फंक्शन कॉल करवा सकते हो. बट जब हम लोग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है देन यू हैव टू कंपल्सरी यूज़ दिस पॉइंटर. ओके, सो जब हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं तभी हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस द बेस वर्चुअल क्लास virtual function, then you have to use the base class pointer, and according to that pointer that can choose the virtual function. Okay, now here the syntax of our virtual function is given. Now to make the function virtual, just precede the virtual keyword before the function declare in the base class. मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे हम लोग वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो. कोई भी वर्चुअल फंक्शन आप लोग को बेस क्लास में डिक्लेयर करना है तो डायरेक्टली आप लोग जो भी हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन है उसके आगे वर्चुअल लिखना है. कौन सा कीवर्ड लिखना है, यू हैव टू यूज़ अ वर्चुअल कीवर्ड. ओके, सो हियर यू कैन सी द क्लास नेम class, then what is the class name, that is user defined name. Then inside the bracket you have to declare your member, so private member, and in public function you have to declare your virtual function. So वर्चुअल फंक्शन है तो आपको क्या लिखना है, वर्चुअल कीवर्ड आगे लिखना है, फंक्शन के नेम के आगे वर्चुअल कीवर्ड लिखना है. सो वर्चुअल रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट आप लोग को पास करना है वो आप लोग लिख सकते हो. सो सिमिलरली आप लोग जितने भी वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है वो आपके बेस क्लास में डिक्लेयर कर सकते हो. सो वर्चुअल क्लास डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हम लोग को वर्चुअल कीवर्ड फंक्शन के आगे लिखना है सिर्फ. ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वर्चुअल वॉइड शो. तो ये क्या रहेगा, हमारा शो फंक्शन है जिसको हम लोग ने कैसे डिक्लेयर किया, वर्चुअल डिक्लेयर किया. सो हियर शो फंक्शन इज वर्चुअल. ओके, क्यों वर्चुअल, क्योंकि हमको ने उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज डिक्लेयर एज अ virtual function. Then our next topic, that is rules for virtual function. Now here a virtual function should be defined in the base class or in which it is appear first. मतलब virtual class हम लोग को कहाँ डिफाइन करना है, you have to define your virtual class in the base class. Okay, virtual function क्या डिक्लेयर करना है, बेस क्लास के अंदर आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो. देन सेकेंड, द वर्चुअल फंक्शन शुड नॉट बी स्टेटिक मेंबर. जो वर्चुअल फंक्शन रहेगा उसको हम लोग स्टेटिक मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते. देन अ वर्चुअल फंक्शन कैन बी द फ्रेंड फंक्शन फॉर अनदर क्लास. ओके, यहाँ से जो भी वर्चुअल फंक्शन हम लोग ने बेस क्लास में डिक्लेयर किए हैं तो उसको हम लोग दूसरे क्लास में फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो. एंड द कंस्ट्रक्शन फंक्शन कैन नॉट बी अ वर्चुअल फंक्शन. फिर जो हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं फॉर आवर क्लास उसको हम लोग वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते.
देन डिस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी अ वर्चुअल क्लास, बट जो आपका देखो यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन रहेगा उसको हम लोग वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हमारा जो भी डिस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको हम लोग वर्चुअल क्रिएट कर सकते हैं. ओके. देन पॉइंटर टू डिराइव क्लास कैनॉट बी यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास. देखो यहाँ पे हमें वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है. देन वी हैव टू यूज़ अवर बेस क्लास पॉइंटर. ओके. सो हम जो डिराइव क्लास का जो पॉइंटर रहेगा वो हमारे बेस क्लास के पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर सकता है. सो यू हैव टू कंपल्सरी मेक द पॉइंटर ऑफ अवर बेस क्लास. Then prototype of the virtual function in the base class and derived class must be explicitly same. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने हमारे बेस क्लास में एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसका नेम है शो. तो वैसे सेम नेम किस में होना चाहिए? डिराइव क्लास में. फिर उसका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, फिर उसके आर्गुमेंट भी सेम होने चाहिए. देन यू कैन डिक्लेयर और फंक्शन एज अ वर्चुअल फंक्शन. मतलब दोनों के प्रोटोटाइप, मतलब उसके रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन नेम वो सारा सिमिलर होना चाहिए हमारे बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास में. देन यू कैन डिक्लेयर अवर क्लास एज अ function is a virtual function. Okay. Then the virtual function defined in the base class is overridden by the definition in the derived class. देखो जो आपका डेफिनेशन आप लोग ने डिफाइन किया है इन द बेस क्लास, उसको आप लोग ओवरराइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द definition in the derived class. Okay. So these are the some rules for our virtual function that we have to remember while creating our virtual functions. Okay. Then you can see the program here, program for virtual function. तो देखो first you have to include your header file, so ivestream.h. then first you have to declare your base class. तो हमारा क्लास है बेस क्लास, दैट इज क्लास बेस. इन पब्लिक सेक्शन पार्ट यू हैव टू डिराइव योर वर्चुअल क्लास. तो हम लोग क्या लिखेंगे? यू हैव टू डिक्लेयर द वर्चुअल कीवर्ड, सो वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले. तो क्या हम लोगों ने उसमें क्या प्रिंट करवाया है? दिस इज द बेस वर्चुअल फंक्शन. तो ये क्या हुआ गया हमारा वर्चुअल फंक्शन. कौन सा है हमारा वर्चुअल फंक्शन? डिस्प्ले. क्यों उसको वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं? क्योंकि हमने उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगाया है. ओके. देन यू हैव टू डिक्लेयर योर डिराइव क्लास. सो क्लास डिराइव पब्लिक बेस, उसमें हम लोग ने सेम वो हमारा जो डिस्प्ले मेथड है उसको डिक्लेयर किया है. सो दिस इज डिराइव्ड ए वर्चुअल फंक्शन. देन दूसरा हम लोग ने डिराइव क्लास लिया, दैट इज क्लास डिराइव टू पब्लिक बेस. उसमें भी हम लोग ने सेम वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किया है. वो किसका है? डिराइव क्लास 2 का वर्चुअल फंक्शन. तो देखो हम लोग ने यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्प्ले फंक्शन है. तो तीनों के जो रिटर्न टाइप है वो सेम है. वॉइड जो फंक्शन का नेम है वो भी सेम है. डिस्प्ले एंड डिस्प्ले तीनों में सेम है और उसके आर्गुमेंट भी सेम है. तो हम लोग ने यहाँ पे रूल्स देखा था ये वाला कि प्रोटोटाइप ऑफ द वर्चुअल फंक्शन इन द बेस एंड डिराइव क्लास मस्ट बी सेम ही है ना, तभी हम लोग उसको वर्चुअल क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं. सो समझ में आया. फर्स्ट हम लोग ने एक बेस क्लास क्रिएट किया, उसमें एक वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले किया, दैट इज डिस्प्ले. दूसरा हमने एक डिराइव क्लास लिया, उसके में भी डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर किया. एंड देन वी कैन टेक अनदर डिराइव क्लास 2, उसमें भी डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर किया है. ओके. सो मेन मेथड में क्या करेंगे हम लोग? इंटीजर मेन, देन यू हैव टू प्रिपेयर द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर ऑफ आवर बेस क्लास. सो बेस पॉइंटर p and b, that is object of our base. ओके. सो डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव 1 d1, डिराइव 2 d2. देन हम लोग ने पॉइंटर को इनिशलाइज किया है. सो p इज इक्वल टू एम्परसेंड b. तो इससे क्या होगा? जो भी हमारा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है b, उसका एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर p में. ओके. देन with the help of this p we can access our virtual class. So p arrow
डिस्प्ले, दो कौन सा फंक्शन एक्सेस होगा, जो हमारे बेस क्लास का फंक्शन है वो कॉल होगा। फिर से हम लोग ने पी को इनिशियलाइज किया है, पी एम्पलसन D1, तो पी में किसका एड्रेस जाएगा, D1 का, तो क्या डिस्प्ले करेगा, हमारे D1 जो डिराइव क्लास 1 है उसका फंक्शन कॉल होगा। सिमिलरली हम लोग डिराइव क्लास 2 के लिए भी लिखेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो भी बेस क्लास के पॉइंटर है उसके हेल्प से हम लोग डिराइव क्लास के मेथड को कॉल करवाएंगे। ओके, सो फर्स्ट आप लोग को बेस क्लास के एक पॉइंटर क्रिएट करना है, दैट इज पॉइंटर पी, उसको फिर अलग अलग वैल्यू पॉइंट करके आप लोग मेथड कॉल करवा सकते हो। सो आपका आउटपुट क्या रहेगा, दिस इज बेस वर्चुअल क्लास, वो किसके रहेगा, ये फर्स्ट जो हम लोग ने डिस्प्ले मेथड कॉल करवाएगी उसके लिए। देन दिस इज डिराइव 1 वर्चुअल क्लास एंड दिस इज डिराइव 2 वर्चुअल क्लास, जो यहाँ पे हम लोग ने दो फंक्शन कॉल करवाए उसकी वजह से। ओके, सो वर्चुअल फंक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग को वर्चुअल कीवर्ड लिखना पड़ेगा इन वो बेस क्लास, और जो बेस क्लास के पॉइंटर है उसकी हेल्प से हम लोग डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ना क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, हम लोग ने अभी वर्चुअल फंक्शन देखा। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि जो भी हमारे बेस क्लास एंड डिराइव क्लास में सेम फंक्शन नेम रहता है, तो हम लोग बेस क्लास के जो फंक्शन है उसको हम लोग वर्चुअल डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, ना अभी हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि द वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द बेस क्लास इज रेयरली यूज फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क, so it is only serve as a placeholder, such as a function or calling do not do nothing function, which are the pure virtual function. Okay, देखो वर्चुअल क्लास में, वर्चुअल फंक्शन में क्या रहता है कि हमारे पास बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में सेम फंक्शन रहते हैं। ओके, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो भी हमारे बेस क्लास का फंक्शन है उसको हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं, उसका यूज़ होता है अदरवाइज नहीं भी होता है। ओके, तो ये जो हमारे बेस क्लास के फंक्शन है वो क्या जस्ट प्लेस होल्डर होते हैं। ओके, तो एफ से जो फंक्शन रहते हैं जो यूज़ नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, डू नथिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डू नथिंग फंक्शन। Now here the member function can also be made pure virtual by appending it with 0 is equal to 0 after the closing the parentheses and before the semicolon। देखो यहाँ पे कि हम लोग ने जैसे वर्चुअल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, तो हम लोग उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लिखते थे हमारे फंक्शन नेम के आगे। ओके, तो अभी हम लोग को प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जब भी हमारा वो फंक्शन नेम फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, इज इक्वल टू 0 लिखना है। ओके, क्या लिखना है आपको, इक्वल टू 0। सो या प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन द बेस क्लास विथ नो बॉडी। तो ये क्या होगा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का मीनिंग क्या है रहेगा, क्योंकि हम लोग वर्चुअल फंक्शन तो डिक्लेयर करेंगे किसमें, हमारे बेस क्लास में, पर उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तो उसकी बॉडी हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो दैट इज द फंक्शन विथ अ नो बॉडी। ओके, सिंस द नो बॉडी वी हैव टू ऐड द notation equal 0 for the declaration of pure virtual function in the base class. A pure virtual function is a virtual function that must be overridden in the derived class. देखो यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो उसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती इन अवर बेस क्लास, सो वी हैव टू डिफाइन एज इक्वल टू 0। ओके, क्या लिखना है, इक्वल टू 0। अभी क्या होगा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है उसकी हम लोग ने डिक्लेरेशन डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की है किसमें, बेस क्लास में, तो वो ओवर रिटर्न होता है विद आवर डिराइव क्लास। ओके, तो वो फंक्शन ओवर रिटर्न होता है इन अ डिराइव क्लास। सो वी मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। देखो कि जितने भी हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हम लोग ने बेस क्लास में डिफाइन किए हैं, ओके, तो डिक्लेयर किए हैं, उसको हम लोग को
इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किस में, हमारे डिराइव क्लास में। ओके, और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ओके, यू कैन सी दैट इज डू नथिंग functions. Okay, now here the pure virtual function is a virtual function that has no definition within the base class, so the general form or syntax is below. देखो, प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो है उसकी डेफिनेशन, उसको हम लोग डिफाइन नहीं करते इन आवर बेस क्लास, तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, वर्चुअल फंक्शन है तो पहले लिखो वर्चुअल, देन योर फंक्शन रिटर्न टाइप, देन योर फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको लास्ट में क्या लिखना है, इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज मेड प्योर, any derived class must provide it its own definition. If the derived class fail to override or pure virtual function, compiler time error will be occur. So class contains such a pure function is called as a abstract class. देखो यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, उसको हम लोग बेस क्लास में डिफाइन नहीं करते, तो जो भी हमारा डिराइव क्लास रहेगा उसको वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब कोई भी डिराइव क्लास जो हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन को वो डिफाइन नहीं करता है, देन देर विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। कौन सी एरर आती है वहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर। और जो भी क्लास के पास ऐसे प्योर वर्चुअल क्लास रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे मैंने पहले बताया कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. So we can define pure virtual function as a function which are only declared but not defined in the base class. देखो यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, द प्योर वर्चुअल फंक्शन विच आर ओनली डिक्लेयर बट नॉट डिफाइन अवर बेस क्लास। ऐसे फंक्शन जो हम लोग हमारे बेस क्लास में उसको डिक्लेयर तो करते हैं पर उसको डिफाइन नहीं करते, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ प्योर वर्चुअल function. Okay, now you can see the properties of our virtual function. That is, pure virtual function has no implementation in the base class, hence the class with the pure virtual function cannot be instantiated. Okay, देखो यहाँ पे जो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन और डिफिनेशन हमारे बेस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता है, देन द प्योर वर्चुअल फंक्शन आर बी इन्वोक बाय इट्स डिराइव क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन इन्वोक करता है, दैट इज इन्वोक बाय द डिराइव क्लास, देन इट इज जस्ट प्लेस होल्डर फॉर द डिराइव क्लास। द डिराइव क्लास इज सपोर्ट टू फिल दिस एम्प्टी फंक्शन। क्या रहेगा, जो भी हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है दैट इज द प्लेस होल्डर, किसके लिए, फॉर अवर डिराइव क्लास। सो डिराइव क्लास को वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, कौन सा, हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन, अदरवाइज देयर विल बी अ कंपाइल टाइम एरर. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर प्योर वर्चुअल फंक्शन. देन देखो यहाँ पे प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू अवर प्योर वर्चुअल फंक्शन. सो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर वन क्लास, दैट इज क्लास नंबर. ओके, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया है दैट इज वैल्यू. ओके, देन पब्लिक सेट वैल्यू को सेट करना है. सो वॉइड सेट वैल्यू इंटीजर आई, वैल्यू इज इक्वल टू आई. और यहाँ पे हम लोग ने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है. सो फर्स्ट कैसे लिखेंगे, वर्चुअल, रिटर्न टाइप है वॉइड, फंक्शन का नेम सो, एन इक्वल टू ज़ीरो. वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, इक्वल टू ज़ीरो करना है. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन. सो दिस अवर वन फंक्शन क्लास दैट इज नंबर विद द वैल्यू इंटीजर वैल्यू. ओके, वेरिएबल. देन एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया सेट वेरिएबल एंड वॉइड शो. देन यू हैव टू डिक्लेयर, हम लोग ने यहाँ पे सो फंक्शन है उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया है तो उसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा इन अवर डिराइव क्लास. सो क्लास हेक्स टाइप
पब्लिक नंबर, वो क्या है, डिराइव क्लास है किसका, नंबर का। सो उसमें हम लोग को ये शो मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो वॉइड शो काउंट हेक्स वैल्यू स्लेस एन। देन दूसरा है क्लास देयर इज डेक टाइप, ओके, पब्लिक नंबर। सो वहाँ पे हम लोग ने शो फंक्शन देयर इज काउंट वैल्यू स्लेस एन। देन दूसरा हमारा रहेगा यहाँ पे हम लोग ने 3 डिराइव क्लास क्रिएट किया है, एक तो हेक्स टाइप, डेक टाइप एंड ऑक्ट टाइप। तो उसमें हम लोग ने 3 शो फंक्शन डिफाइन किए हैं। तो हर एक शो फंक्शन का अलग अलग उसका क्या रहेगा, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। उसमें वो एक क्लास में वो हेक्साडेसिमल नंबर डिस्प्ले कर रहा है, दूसरे में डेसिमल नंबर एंड थर्ड में वो ऑक्टल नंबर, ओके। तो इन मेन मेथड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डेक टाइप डी, हेक्स टाइप एच एंड ऑक्ट टाइप ओ, और उसे हम लोग वैल्यू को कॉल करवाते हैं एंड यू हैव टू प्रिंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो डी डॉट शो, एच डॉट शो एंड ओ डॉट शो। सो व्हाट इज योर आउटपुट, दैट इज 20, 14 एंड 24, okay. So in this way you can implement your pure virtual function. For that you have to write down equal 0, okay. So आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, we learn about our runtime polymorphism. क्या होता है runtime polymorphism? Here the information related to function that is taken and dynamically, okay, that is called as our runtime polymorphism. You can also called as a late binding or dynamic binding, okay. Then we learn about our pure virtual function and virtual function. So I hope you all understand today's topic. Thank you.